Welcome back. In this particular video, we are again talking about Qt MCQ for computer science and informatics practices. And this time we have taken the chapter security aspect, which is actually the part of section B2. And as you all know that section B2 has to be attempted by the students who have opted informatics practices. So इसके लिए मैंने कुछ most important questions अपनी ओर से ready किए हैं, which I think every student should go through. So let's discuss all the questions one by one. First question is asking that malware stands for what? So first option is malfunction software, then malcontent software, then malicious software, or you can say malicious software. So the correct answer for this is what? Malicious software. Next question is asking that which of the following is not a malware? Virus, worms, Trojan, or cookies. We all know that virus, worms, and Trojan all are different type of malwares. Cookie is something which is not, considered as malware. It's a simple text file, so we can say it is cookies is the correct answer. The next question is saying that virus is a piece of software code that is created to hamper system resources and activated as soon as infected file is opened by user. So this is absolutely correct that virus जो होता है it's a type of malware जो basically तो एक प्रोग्राम ही होता है जो obviously आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को नुकसान करता है और ये तभी एक्टिवेट होता है जब किसी यूजर के द्वारा इसे ओपन किया जाता है. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. अगर जैसे वॉर्म्स की मैं बात करूं तो वॉर्म्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं, उसे एक्टिवेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है. यदि आप भी क्यूट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने CSNIP को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसके लिए सिलेबस, MCQs, मॉक टेस्ट एंड नोट्स को सर्च कर रहे हैं तो ये सभी मटेरियल आपको एक साथ एक ही वेबसाइट दैट इज www.techtipnow.in पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. और हाँ, मैंने क्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की 1000 MCQ की ई बुक को भी रिसेंटली पब्लिश कर दिया है. इसे आप 179 रुपीज पे करके परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए वापस से आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे आना होगा और वहां से इसे डाउनलोड करना होगा. So option 1 is correct. I mean true, formally without caring of the reason or motivation behind their creation. So it is absolutely wrong statement because virus जो होता है उसका जो पर्पस होता है वो obviously अलग अलग हो सकता है. मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस हो सकते हैं जो डिफरेंट तरीके से किसी सिस्टम को हार्म कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is asking that I am a malware and standalone program and capable of working of my own. Nimda, Code Red are some of my example. Who am I? So अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जब बात की वायरस की तो ये हमने देखा कि वायरस जब कोई यूजर ओपन करता है इन्फेक्टेड फाइल को तो एक्टिवेट हो जाता है. लेकिन जो वॉर्म्स होते हैं ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जो खुद ही एक्टिवेटेड होते हैं. तो ये जो निम्डा है, कोड रेड है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके वॉर्म्स के. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is asking that Dash looks like a legitimate software which one installed act like a virus. इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लगता तो है कि बहुत ही ऑथेंटिक है बट वो एक्चुअली वायरस होता है. So the correct answer for this question is what your Trojan. Let's move to the next question. Which of the following is usually annoying but harmless for system? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मालवेयर है जो सिस्टम को या सिस्टम के रिसोर्सेस को तो नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज एडवेयर बिकॉज बार बार जब आप वर्क कर रहे हैं और उस समय ये एड थ्रो किए जाएं तो ऑब्वियसली ये आपके वर्क को आपको काम करने के दौरान डिस्टर्ब कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज एडवेयर. Let's move to the next question. It is asking that the virtual keyboard of an operating system that used a fixed QWERTY key layout is called what? See, ideally if you see that there are two types of keyboards. One is called on-screen keyboard and second is what your online virtual keyboard. इन दोनों में जो डिफरेंस होता है कि जो ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड्स होते हैं उनका जो की पैड होता है वो फिक्स होता है, मतलब वो QWERTY को फॉलो करते हैं. लेकिन जो ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड होता है ये रैंडम होते हैं, मतलब इसमें जो कीज आती हैं उनकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती है. जैसे आपने देखा होगा जब आप SBI का से फॉर एग्जांपल या उसकी कोई ऐप आप यूज करते हैं तो उसमें जब भी आप कोई पासवर्ड डालते हैं तो उसका नंबर चेंज होता है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है. ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. या जब आप किसी पेटीएम मशीन को यूज करते हैं पेट्रोल पंप में तो वो जो POS मशीन देता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसमें आप अपने डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो जो उसके आपने देखा होगा कि नंबर्स होते हैं वो रैंडमली
प्लेस्ड होते हैं और उसकी बेसिस पे किसी को भी उस नंबर को ट्रेस करने में आसानी नहीं होती। सो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो क्वेटी की लेआउट जो कि फिक्स्ड होता है उसको फॉलो करता है। जबकि जो वर्चुअल कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें कि रैंडम होता है की लेआउट, दैट इज बेसिकली व्हाट योर ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अ malware once designed can take many routes to reach your computer. Which of the following you think is not correct channel of distribution of malware? Obviously malware है, अलग अलग तरीके से आपके सिस्टम को ये इम्पैक्ट कर सकता है। सो द फर्स्ट वन इज सेइंग दैट इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं और आपने कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया तो उसके साथ कई बार ये डाउनलोड हो जाते हैं, या अनइंटेंशनली कई दफा आप ऐसे मालवेयर्स को डाउनलोड कर लेते हैं। सो इट इज करेक्ट। दूसरा ये है कि सपोज पेन ड्राइव कोई इन्फेक्टेड है और आपने उसको अपने सिस्टम पे डाला तो उस पेन ड्राइव के थ्रू भी वायरस आपके सिस्टम में आ सकता है। दैट मीन्स रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया जो होते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं, वो भी एक सोर्स का काम करते हैं वायरस के आपके सिस्टम में आने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो लिंक्स होते हैं या अटैच्ड फाइल्स होती हैं, जैसे आप कोई ईमेल ओपन करें विच इज नॉट रिलायबल, विच इज नॉट ऑथेंटिक, तो ऐसी सिचुएशन में भी मालवेयर आ सकता है। तो इन द सेंस इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे ही सही हैं, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मालवेयर के आने का तरीका ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राजू हैज बीन asked to identify common sign of some malware infection. Help him out to find so from given option. राजू को पूछा गया कि कॉमन साइंस क्या है मालवेयर का अगर आपके सिस्टम में इफेक्ट हो जाए या इम्पैक्ट हो जाए। सो पहला बोलता है कि प्रोग्राम ओपन और क्लोज हो अपने आप, बिल्कुल सही है, हो सकता है। सडन लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, रैंडम साउंड स्टार्ट टू अपीयर, ये भी बिल्कुल सही है। भाई हो सकता है आपका अचानक मेमोरी फुल हो जाए या साउंड आना शुरू कर दे बीच बीच में, या कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफी डाउन हो जाए, या कई दफा वो क्रैश हो जाए, हैंग हो जाए। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे ही एक कॉमन साइन होते हैं या एक प्रकार से कॉमन साइन होते हैं मैलवेयर के इन्फेक्शन को पहचानने के, यदि आपका सिस्टम अफेक्टेड हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here it is asking that act of repeatedly spending advertisement link and invitation email to a large number of users is called what? मतलब बहुत सारे मास पीपल को ईमेल सेंड करना जहां पे इनविटेशन लिंक हो या एडवर्टीजमेंट की लिंक डाली जाए। दिस एक्चुअली प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट योर फिशिंग, राइट? इसे हम स्पैमिंग के नाम से भी जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट योर स्पैमिंग। और एक्चुअली ये जो प्रोसेस होता है ये फिशिंग के अंतर्गत है, विच इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ स्पैमिंग यू कैन से, बिकॉज स्पूफिंग इज ऑल्सो देयर। सो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग स्पैमिंग इज देयर, बट आप ध्यान रखें अगर फिशिंग ऑप्शन दिया है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग HTTPS इज व्हाट? सो ऑब्वियसली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो सही है, एस का मतलब हो जाता है यहाँ पे सिक्योर। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, which is nowadays a kind of certificate, website take from the web services to make sure that their website is reliable so that user can open it without any sort of fear, right? And when we talk about the certificate, so it's basically the SSL certificate we all know. Now the next question is also based on that कि अगर आपको HTTPS चाहिए तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? तो ऑब्वियसली आप डोमेन तो परचेस करते हैं, डोमेन इन द सेंस आपका जो वेबसाइट का नाम रहता है, जैसे www.techtipnow.in। तो आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे तो ये जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे MCQs को या कंप्यूटर साइंस के नोट्स के बारे में या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के नोट्स हो, मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिकल हो, एक्सरसाइज हो, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस हो NCERT की या सुमिता अरोरा की, वे सारे आपको मेरी इस वेबसाइट www.techtipnow.in पे मिल जाएंगे। सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। Next question is asking that it acts as a network filter and continuously monitor and control the incoming and outgoing traffic. So ये एक प्रकार का नेटवर्क फिल्टर होता है जो कि मॉनिटर करता है जो भी ट्रैफिक, इन द सेंस जब आप कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं उस समय जो डेटा आपके सिस्टम तक आता है या डेटा जो आपके सिस्टम से जाता है उसको वो पूरा मॉनिटर करता है। दैट इज बेसिकली योर फायरवॉल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Cookies that get recreated after being deleted is known as what? It's a very good question. So the correct answer is what? Zombie cookies. ध्यान रखें कि जब cookies जिसे आप डिलीट कर दें और वो फिर से रिक्रिएट हो जाए तो वो zombie cookies के नाम से जानी जाती है। Next question is asking that dash is a malware that records the key pressed by the user on the keyboard
using which one can get very sensitive and personal information of user like password, email, etc. तो ये एक प्रकार का मालवेयर है। एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो मालवेयर है ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी होता है और ये हार्डवेयर के फॉर्म पे भी मिलता है, जो कि एक्चुअली आपके कीबोर्ड में जब आप कोई भी की को प्रेस करते हैं तो उसे रिकॉर्ड कर लेता है, इन द सेंस उसका पूरा एक लॉग बन जाता है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, इस मालवेयर के द्वारा, नॉट सॉफ्टवेयर। तो उससे क्या होगा कि आसानी से जो हैकर है या जो साइबर क्रिमिनल है वो आपके पासवर्ड या ईमेल्स को या पर्सनल जो आपकी कॉन्वर्सेशंस होती हैं उन सबको वो ट्रैक कर सकता है, जिससे कि वो बाद में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसका जो मैलवेयर का नाम होता है दैट इज योर की लॉगर एक्चुअली। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट फाइंड द इनवैलिड मेथड यूज्ड बाय एंटीवायरस टू डिटेक्ट मैलवेयर। अगेन इट इज वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट एंटीवायरस जो होता है एक्चुअली वो बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से मैलवेयर्स को या वायरसेस को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। उनमें से सैंडबॉक्स एक प्रोसेस होता है। सैंडबॉक्स बेसिकली जिसमें एक वर्चुअल सिस्टम होता है जहां पर वो जो भी डाउटफुल प्रोग्राम्स होते हैं उनको वो रन करके चेक करता है, उनको जरा सा भी डाउट होता है तो वो आपको इन्फॉर्म करता है। डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं तो अवेलेबल डेटा की बेसिस पे ये वायरसेस को डिटेक्ट करता है। फायरवॉल इज नॉट देयर। ह्यूरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली ऑलरेडी जो है एंटीवायरसेस जो होते हैं उनका अपना एक डेटाबेस होता है जहां पे ऑलरेडी उनके पास कॉमन पैटर्न जो वायरसेस के होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। सो ये ह्यूरिस्टिक्स मेथड में वो क्या करते हैं कि उस पैटर्न से अगर उनको मैचिंग दिखती है आपके प्रोग्राम की एक्टिविटीज की तो इमीडिएटली वो आपको वार्न करता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फायरवॉल जो है वो इनवैलिड मेथड है, क्योंकि फायरवॉल इटसेल्फ इज ए प्रोग्राम जो ऑब्वियसली आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट it's a kind of system used by antivirus where a new application or file is executed in a virtual machine to detect any malicious activity by observing its behavior। तो जैसे मैंने आपको बताया कि this is called sandbox। ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन होती है या एक एंटीवायरसेस के द्वारा अपना खुद का एक एनवायरनमेंट होता है जहां पर कि वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि प्रोग्राम वैलिड है या नहीं है। जरा सा भी उन्हें डाउट होता है कि इसकी जो एक्टिविटीज है प्रोग्राम के प्रोसेस के दौरान ये कुछ इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है, तो वो उसे वायरस घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट्स दैट इज कॉमनली फाउंड इन सर्टेन मैलवेयर सैंपल इज रिफर्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड वायरस सिग्नेचर। मीन्स क्या होता है कि एंटीवायरसेस क्या करते हैं, अपने पास वायरस के सिग्नेचर्स का कलेक्शन रखते हैं, जो मैं ह्यूरिस्टिक्स की बात कर रहा था। इस सिग्नेचर का मतलब ये रहता है कि बहुत सारे वायरसेस जो होते हैं उनका जो पैटर्न होता है उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जो होते हैं जो कि कॉमनली वायरस सिग्नेचर के नाम से जाने जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट मेथड ऑफ कंपेयरिंग सोर्स कोड ऑफ ए सस्पेक्टेड प्रोग्राम with already known virus present in database of antivirus is known as what? So as I said, this is called heuristics, the method. The next is saying hacker uses its knowledge to find and help in fixing the security flaw in the system. ऐसे hackers जो किसी भी communication system में या किसी पर्टिकुलर सिस्टम में जो उसके फ्लॉज होते हैं किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है उसमें आपकी मदद करते हैं। दे आर एक्चुअली कॉल्ड एथिकल हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स, बोथ, दोनों ही एक ही बात है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज आस्किंग दैट हैकर्स टेक सिस्टम सिक्योरिटी एज ए चैलेंज एंड जस्ट हैक सिस्टम फॉर द फन ऑफ इट आर टर्म्ड एज व्हाट? तो इन्हें हम बेसिकली ग्रे हैकर्स के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट डिनियल ऑफ सर्विस रिफर्स टू व्हाट? Attacking floods the victim resources with traffic, making the resources appear busy. So this is the correct one, I think. Real-time interception or monitoring of private communication between two entities over a network is the wrong one. Display unwanted online ads is again wrong. Sending advertisement link is again wrong. Correct answer is the first one which I just told. So denial of service में क्या होता है कि इतना ट्रैफिक सिस्टम के रिसोर्स में डाल दिया जाता है या जो यूजर होता है उसके रिसोर्स में डाल दिया जाता है या जो सिस्टम वो यूज कर रहा होता है उसमें इतना ट्रैफिक होता है जैसे लगातार मेल सेंड करना, तो उससे उसका रिसोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डॉस अटैक। तो ये किसी भी जो विक्टिम होता है उसके रिसोर्सेस, उसके सॉफ्टवेयर को या उसके हार्डवेयर को
नॉन इफिशियंट बना देता है। सो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एम ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल created on user's computer contain small piece of data like username, password, user's browsing history. I may help to improve user's web browsing experience. Who am I? So the correct answer is what? मैंने यहाँ पे ऑप्शंस गलत डाल दिए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज व्हाट योर कुकीज, राइट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये एक्चुअली यहाँ पर वेब ब्राउजर के बारे में बात कर रहा है, तो जिसमें कि अवास्ट जो होता है वो एक वेब ब्राउजर नहीं होता है, राइट। इट्स बेसिकली एंटीवायरस का नाम, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कंसीडर कर लेंगे कि इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कुकीज। वी ऑल नो दैट कि जैसे आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ओपन करते हैं और उसमें आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फिर नेक्स्ट डे अगर आप फिर से उसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो वापस आपको जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया था लास्ट टाइम, जो आपकी चॉइस थी, उससे ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स फिर से प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें किस तरह से होती हैं? वो इस तरह से होती हैं कि जब आपने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ओपन की थी तो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट अपने वेब सर्वर से आपके सिस्टम तक कुकीज भेजता है, जो स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, जो ऑटोमेटिकली कई दफा डाउनलोड होती है। हालांकि आजकल सारी ही वेबसाइट जो होती हैं वो आपसे पूछती हैं क्या आप कुकीज को एक्सेप्ट करेंगे, तो यस या नो आप करते हैं। तो अगर आपने यस कर दिया तो आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। बट Nowadays we all know that कि there are zombie cookies या कुछ ऐसी कुकीज भी होती हैं मोस्टली जो हैकर्स या अटैकर्स के द्वारा यूज की जाते हैं आपके सिस्टम की पर्सनल इंफॉर्मेशंस को या सिस्टम के रिसोर्सेस को हैम्पर करने के लिए। इसलिए हम कुकीज को एक्सेप्ट करना अवॉइड ही करते हैं या अवॉइड ही हमें करना चाहिए। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे आज के सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड, विच अगेन आई थिंक would be helpful for all of you to crack your competitive exams, maybe your entrance exam also। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। Thank you for watching this video and please don't forget to like, share and subscribe as well. Bye bye and thank you. यदि आप भी क्यूट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने CSNIP को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसके लिए सिलेबस, MCQs, मॉक टेस्ट एंड नोट्स को सर्च कर रहे हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको एक साथ एक ही वेबसाइट दैट इज www.techtipnow.in पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हाँ, मैंने क्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की 1000 MCQ की ई बुक को भी रिसेंटली पब्लिश कर दिया है। इसे आप 179 रुपीज पे करके परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वापस से आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे आना होगा और वहां से इसे डाउनलोड करना होगा। मैं एक बार आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। आप सबसे पहले यहां पर टाइप करें techtipnow.in। जैसे ही आप techtipnow.in को ओपन करेंगे, इसका जो फ्रंट पेज है या होम पेज है, इसमें ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामोजो के स्टोर पे। यहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ है। जैसे ही आप इसे परचेस करेंगे ये आपके ईमेल एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात कर रहा था, यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे techtipnow.in के होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सिलेबस, MCQ, मॉक टेस्ट और नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पे। और साथ ही साथ इस वेबसाइट के टॉप में मेन्यू में भी मैंने क्यूट का एक सेपरेट मेन्यू बनाया हुआ है। वहां से जाकर भी आप डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करके रिस्पेक्टिव टॉपिक को और मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं।